નરેશભાઈ ઉપર. ઝડપ રાખો, ઝડપ 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 ઝડપથી. ઝડપ રાખજો, ઝડપ ઝડપ ઝડપ. ચાલો ઝડપથી ઝડપથી. બસ હવે સાઈડ પર રહ્યો. ચલો જેનું પતિ તરુલતાબેન આવી જાઓ. ચલો આવી જાઓ, આવી જાઓ. નરેશભાઈ ચાલો ઝડપથી આવી જાઓ, આવી જાઓ ઝડપથી આવી જાઓ, ઝડપથી આવી જાઓ, આવી જાઓ ઝડપથી આવી જાઓ, ઝડપથી આવી જાઓ. ચાલો પતિ ગયું. ખૂબ ખૂબ આભાર દાહોદ જિલ્લાની સમગ્ર ટીમ તરફથી માનનીય બંને મુખ્યમંત્રીઓને જે સ્વાગત સમારોહ કરાવવામાં આવ્યું છે તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણી વચ્ચે ગુજરાતના કેજરીવાલ એવા ઈશુદાન ગઢવીજી ઉપસ્થિત છે. હું એમને વિનંતી કરીશ કે દાહોદની જનતાને સંબોધિત કરે. માનનીય ઈશુદાન ગઢવીજી, ખૂબ ખૂબ તાલીઓથી આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. बोलो भारत माता की, इंकलाब, जय जवान, जय जोहार. वाह, आजे दाहोदनी धरती पर दिल्लीना मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टीना राष्ट्रीय कन्वीनर અને હિન્દુસ્તાન અને ગુજરાતના લોકોની ઉમ્મીદ એવા માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે એમને વધાવીએ. માનનીય ભગવત માનજી, આપણા સૌ ઉમેદવારો અને મોટી સંખ્યામાં જ્યાં પણ નજર પડે છે, મને લાગે છે તમે ખેડ બ્રહ્માનો રેકોર્ડ તોડી દીધો છે ભાઈ બધાઓએ. તમારી આજ प्रेमनी लागणी जुस्सो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भगवत मान होय के दिल्लीना तमाम नेताओ होय, एक ज राह जोई रह्या छे गुजरातना लोको माटे कंईक करी छूटवुं छे, कंईक मरी छूटवुं छे. साहेब मित्रों, हूँ अहींथी खातरी आपूं छुं, दाहोदनी भूमि उपरथी आज दिवस सुधी आदिवासी समाजनो कोई भारतीय विकास नथी कर्यो. आज दिवस सुधी आदिवासी समाज ने मात्र कचड़तो वर्ग राख्यो छे. अहींयाथी जाहेरमां गेरंटी आप्युं छे. मित्रों, आम आदमी पार्टीनी सरकार बनतानी साथे ज पैसा कानून आपणे लागू करीशुं. साहेब, जोरदार रीते करीशुं. एटलुं नहीं, आदिवासी समाज ने ग्राम सभा ने पावर आपीशुं. आदिवासी समाज कहेशे एवी ज रीते सरकार वर्तशे. जय आदिवासी, मूळ आदिवासी. मित्रों, आज माता बहनों मोटी संख्या में उपस्थित है. मारे एमने कहेवुं छे, बेंकनुं खातुं खोलाव्युं न होय तो खोलावी लेजो. 1.5 महीना पछी
તમારી પોતાની આમ આદમીની સરકાર આવશે, 18 વર્ષથી ઉપરની માતાબેન દીકરીઓના ખાતામાં દર મહિને 1000 રૂપિયા નાખવામાં આવશે સાહેબ. મિત્રો, મને ખબર છે અહીંયા વિકાસના નામે જીરો છે, સારી સ્કૂલો નથી. ભાજપના આદિવાસી નેતાઓએ આપણા ગામોમાંથી સરકારી સ્કૂલો બંધ કરાવી છે. આ વાત સાચી છે મિત્રો? અહીંથી ખાતરી આપીએ છીએ, આમ આદમી પાર્ટીની ઝાડુની તમારી પોતાની સરકાર લાવો, તમારા ગામમાં પણ અંગ્રેજી મીડિયમમાં આપણો બાળક ભણતો હશે એની ગેરંટી લઈએ છીએ મિત્રો. અત્યાર સુધી આ લોકોએ આરોગ્યના નામે આપણે લૂંટ્યું. મિત્રો, કોઈ બીમાર પડે છે તો ક્યાં જવું પડે છે? ક્યાં જવું પડે છે? અમદાવાદ, સુરત, મોટી મોટી ખાનગી હોસ્પિટલમાં જવું પડે છે. અહીંથી ખાતરી આપીએ છીએ મિત્રો, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનતાની સાથે જ તમામ ગામમાં MBBS ડોક્ટર સાથે મોહલ્લા ક્લિનિક ખોલીશું ને મફત સારવાર આપીશું સાહેબ. એટલું નહીં, ત્યાં માની લો કે તમને કોઈ મોટો રોગ થયો હોય, ન કરે નારાયણને, અને આદિવાસી મારી ભાઈ બહેન કે કોઈ પણ નાગરિક ગુજરાતનો એ મોહલ્લા ક્લિનિકમાંથી લખાવી લે, તમારે કોઈ પણ ખાનગી હોસ્પિટલમાં વયો જવાની છૂટ. 1 લાખનું બિલ આવે કે 1 કરોડનું બિલ આવે, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર ભોગવશે મિત્રો. મિત્રો, મને ખબર છે અહીંયા નોકરીઓ નથી મળતી, રોજગારના ફાંફા પડે છે. આપણા બેરોજગાર યુવાનોને ભણાવીએ પેટે પાટા બાંધીને, પણ કોઈ સરકારી કે ખાનગીમાં નોકરી નથી મળતી. અહીંથી ખાતરી આપીએ છીએ, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવતાની સાથે ફેબ્રુઆરીથી સરકારી ભરતીઓ ચાલુ કરીશું, અને ઈ પણ પેપર લીક થયા વગર ભરતી થશે સાહેબ. આવતા ડિસેમ્બર સુધીમાં તમામ સરકારી જગ્યાઓ ભરાઈ જશે, અને મિત્રો, તમારો મારો બાળક પણ સારી સરકારી નોકરીમાં હશે, એની ગેરંટી આપીએ છીએ, એની ગેરંટી આપીએ છીએ. ખાનગી કંપનીઓ છે એમાં પણ 80% સ્થાનિકને રોજગારી મળે એવો આપણે કાયદાઓ લાવીશું ને એનો અમલ ચુસ્તપણે કરીશું. અને જ્યાં સુધી મારા બેરોજગાર યુવાનને નોકરી ન મળે ત્યાં સુધી મહિને 3000 રૂપિયો બેરોજગારી ભથ્થું આપવામાં આવશે. મિત્રો, ભાજપની સરકાર ભૂલથી પણ આવી જશે તો યાદ રાખજો, પેપર ફોડી અને પોતાના કાર્યકર્તાઓને નોકરીએ લેશે, તમને નહીં લે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, મારે એટલા માટે આપણે કહેવું છે. મિત્રો, આનાથી મોટી વાત અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે છે, એનું એક જ સપનું છે કે મારો આદિવાસી સમાજ, મારો ગરીબ પીછડો દલિત સમાજ હોય, આદિવાસી સમાજ હોય, ગરીબ સમાજ હોય, ખેડૂત સમાજ હોય, એને પૂરતા ભાવ પણ મળવા જોઈએ, એના પાકની પૂરેપૂરી ખરીદી પણ પોષણક્ષમ પાકોએ થવી જોઈએ. અને કોઈના બાપની તાકાત નથી કે મારો આદિવાસી ભાઈ નો ઈચ્છે ત્યાં સુધી એના ઘરે થાંભલો પણ ન મૂકી શકાય સાહેબ. આવી વ્યવસ્થા પેદા કરીશું આપણે. મિત્રો, એક વાત મારે આપણે કહેવી છે, દૂર દૂર સુધી ઊભા છો, મને ખરેખર એમ થાય છે આ વખતે પરિવર્તન નક્કી છે. આ વખતે તમારી સરકાર, આમ આદમીની સરકાર આવી રહી છે. પણ એક કામ કરવાનું છે મિત્રો, 1 માર્ચથી જો કોઈ પણ પાર્ટીની નેતાઓ આપણી પાસે આવશે, આપણા સમાજના, ભાજપના આવશે, કોંગ્રેસના આવશે, તો ઈ કાંઈ તમને ને મને ફાયદો નહીં કરાવે. પણ આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવતાની સાથે 1 માર્ચથી તમારા લાઇટ બિલ 0 આવતાની સારું થઈ જશે આજીવન સુધી સાહેબ. આ ગેરંટી આપીએ છીએ આપણે. કોઈએ વીજળી બિલ આપવાની જરૂર નથી. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે સુદાનભાઈ આ રૂપિયા લાવશો ક્યાંથી?
ભાજપના બુચસિયાઓ જે સંપત્તિ છે ને એની જપ્ત કરીને તમને વીજળી ફ્રી આપી દેવી છે સાહેબ. પણ એના માટે મારે આપનું એક વચન જોઈએ છે મિત્રો. અત્યારે અહીંયા 1 લાખ પબ્લિક ઉપસ્થિત છે મને લાગે છે, બરોબર છે? આ 1 લાખ લોકો નક્કી કરે કે આગામી 40 દિવસ રહ્યા છે ચૂંટણીને. ભાજપ ભ્રમણા ફેલાવે છે, ભાજપો દુષ્પ્રચાર કરે છે, પણ મારે તમને એમ કહેવું છે કે તમે લોકો નક્કી કરો 40 દિવસે આપણા સગા સંબંધી હોય, વેવાઈ હોય અને 100 વ્યક્તિ જોડો તો આ ભાજપની સરકાર બદલી જાય કે ન બદલી જાય? બદલી જાય કે ન બદલી જાય? અચ્છા, ગેરંટી કાર્ડ આપણે આપ્યા છીએ, ગેરંટી કાર્ડ મેળવી લીધા છે બધાએ? મેળવી લીધા છે? મિત્રો, ટીવી ખરીદવા જઈએ, ઇસ્ત્રી ખરીદવા જઈએ તો ખબર છે ને ગેરંટી ને વોરંટી કાર્ડ આપે છે કે નથી આપતા? અને જો ટીવી ખરાબ થઈ જાય તો ગેરંટી કાર્ડ દેખાડો એટલે ટીવી બદલી જાય. એમ અરવિંદ કેજરીવાલજી હિન્દુસ્તાનમાં એક એવા નેતા છે કે તમને ગેરંટી કાર્ડ આપ્યું છે, રાખજો. આપણી સરકાર આવતાની સાથે જ વીજળી બિલ ફ્રી થઈ જશે. આ તમને ગેરંટી કાર્ડ આપ્યું છે મિત્રો. પણ આના માટે મહેનત તો કરવી પડે કે ન કરવી પડે? આ ભાજપ વાળાએ નક્કી કર્યું છે રૂપિયા આપવાનો. એક મતના 10,000 રૂપિયા આપવાનું નક્કી કર્યું છે. કેટલું? 10,000. તમારા ઘરમાં 4 મત હોય તો 40,000 રૂપિયા આપશે. હું કહું છું એ રૂપિયા લઈ લેજો. એ રૂપિયા લઈ લેજો. પણ મત કોને આપશું? ઝાડુને, સાવરણાને. કારણ કે તમારા ને મારા બાળકની ચિંતા માત્ર માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી કરે છે સાહેબ, બીજા કોઈ નેતાની તાકાત નથી. પણ મિત્રો, એક વચન મને જોઈએ છે. તમે 100 વ્યક્તિ જોડો તો અહીંયા 1 લાખ જનતા છે. 100 વ્યક્તિ જોડે તો લાખો થાય કે ન થાય? થાય કે ન થાય? આટલું કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ? 40 દિવસ છે. ગામમાં, ઘરમાં, દુકાને, આ બધી જગ્યાએ માણસો, મિત્રો, ભાઈબંધ 100 વ્યક્તિ જોડી શકીએ કે ન જોડી શકીએ? તો મને છેલ્લે વચન આપી દો, જોડશો 100 વ્યક્તિ? હાથ ઊંચો કરીને વચન આપો એટલે ખબર પડે. જોડશો? પાકું? જય જોહાર, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ ઈશુદાનજી. આપણી વચ્ચે પંજાબના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી એવા માનનીય ભગવંત માન સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું માન સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આપણી દાહોદની જનતાને સંબોધિત કરે. ખૂબ ખૂબ તાલીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ માન સાહેબનું. दाहोद इलाके के भारी संख्या में अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की उम्मीद लेकर, अपने बुजुर्गों के अच्छे इलाज की उम्मीद लेकर, तरक्की की उम्मीद लेकर, रोजगार की उम्मीद लेकर लाखों की गिनती में यहाँ पहुँचे हुए सत्कारयोग माननीय बुजुर्ग, युवा, माएँ, बहनें और बच्चे और मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, भाई ईशुदान जी और हमारी गुजरात की पूरी टीम, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इतनी भारी संख्या में जब लोग बाहर खुद ब खुद आते हैं और बिना कहे और बिना माइक से बोले हुए तालियां बजाते हैं तो ये परिवर्तन की निशानी होती है।
इसका मतलब आप तंग आ चुके हैं पुराने सिस्टम से। इस बार सिस्टम को बदलने के लिए आप बाहर निकले हो, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हो। हमें बहुत खुशी हुई। आपने जब घर से बाहर पहला कदम निकाला, समझ लो गुजरात तो उसी वक्त आपने बदल डाला। हम यहां कोई लंबे लंबे भाषण देने नहीं आए, हम यहां कोई आपको झूठे सपने दिखाने नहीं आए, हम कोई जुमले सुनाने नहीं आए। हम आपसे बातें करने आए हैं, और बातें भी वही हैं जो आप घर में चूल्हे के सामने बैठकर, जो आप बस स्टैंड में किसी समोसे की रेडी पर खड़े होकर, चाय की दुकान पे खड़े होकर करते हो। वही चिंता हमें भी है जो तुम्हें है कि आपके परिवारों का क्या बनेगा, गुजरात का क्या बनेगा, देश का क्या बनेगा। तो आज हौसला बढ़ गया कि कम से कम लोग बाहर निकले, क्योंकि देश जो है ये लोगों का है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोकतंत्र में अगर कोई नेता अपने आप को लोगों से बड़ा समझने का घमंड कर बैठे तो बहुत बुरी करते हैं लोग। जनता चुप रहे 5 साल, जनता कुछ ना बोले 10 साल, जनता अपने होठों को सीले 15 साल, जनता अपने दिल पर पत्थर रख ले 27 साल। लेकिन 27 साल बाद जब जनता उठती है, बोलती है, तो 27 साल का हिसाब भाई साहब 27 मिनट में ले लेती है ये जनता है। ये घमंड में रह रहे हैं। इनको ये है जो हम कहते हैं वही कानून होता है। बस जहां हमने ऐसे ऐसे कर दिया वोट आ गए। अरे भाई लोग हैं, ये पब्लिक है। आजकल पब्लिक को ऐसे मूर्ख नहीं बना सकते। आजकल लोग ऐसे करते हैं, घर पे झंडा किसी और पार्टी का, जेब पे झंडा किसी और पार्टी का, मोटरसाइकिल पर झंडा किसी और पार्टी का, और रैली किसी और पार्टी की, और अंदर जाके काम किसी और पार्टी का। ऐसे ही करते हो ना, इस बार भी कर देना। उनके भी जहां जा आना, उनका हौसला बना रहे कि हाँ हैं हमारे पास। दुखी कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं आपके सब्र का, मैं आपके पेशेंस की दाद देता हूं, सब्र की। 27 साल हो गए। अरे हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, इस बार मौका है गुजरात वालों, बदल लो। पेड़ भी खुश हो जाएंगे। हरियाली है, बहुत बहुत हरा भरा देश है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास मारूथल है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास हर किस्म का मौसम है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास तेल है। कमी है तो सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है, वो पूरी कर दो बस। आपकी मेहनत पर मुझे कोई शक नहीं है। आप मेहनती लोग हो, देशभक्त लोग हो। लोग कभी भी करप्ट नहीं होते, लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते। जो लोगों से वोट लेकर कुर्सियों पर बैठते हैं वो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, चलो कोई नहीं 5 साल और सही। इस बार आपके पास मौका है, और मौका भी ऐसा है, दोबारा मौका ऐसा कम ही आता है, क्योंकि एक तरफ कीचड़ में उगने वाला कमल है, दूसरी तरफ कीचड़ को साफ करने वाला झाड़ू है। कांग्रेस की तो बात ना ही करो तो ठीक है, वो तो कोमा में चली गई। वो तो कांग्रेस का हाल तो वो है जो 90 साल के बुजुर्ग को डॉक्टर कहते हैं कि घर पे ले जाकर सेवा कर लो, अब कुछ नहीं है इसमें। तो आपके पास मौका है झाड़ू का। पंजाब में 6 महीने
लगभग 6.5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। हमने 17,000 से ज्यादा हमने सरकारी नौकरियां दे दी। कल ही साइन करके आया हूं, 8736 कच्चे मुलाजम 2 अध्यापक थे, उनको पक्के किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कर नहीं सकते वो कहते ही नहीं हैं। हम 5 काम कहेंगे, 6 करके दिखाएंगे। अगर 6 कहेंगे, 6 करके 5 करेंगे तो हमें लगता है कुछ कम रह गया, हमारे में कमी रह गई कोई। ये फर्क है। पंजाब में 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर पुलिस की भर्ती का पेपर है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रखे जाएंगे। पेपर है। मजाल है कोई पेपर फूट जाए हमारे पंजाब में, ऐसी बात। दिल्ली में कोई पेपर फूट जाए, यहां कोई ऐसा पेपर ही नहीं है जो पहले फूटता नहीं है, क्योंकि नौजवानों को बहुत नुकसान होता है। उनका मेहनत करने को दिल नहीं करता जब पेपर फूटता है। पेपर फूटा, सपना टूटा। तो आपके सपने बहुत बार इन्होंने तोड़े हैं। अब जो आपके सपने होंगे अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, वो सपने पूरे किए जाएंगे। आपके सपने, मुझे तो पता चला है कि यहां पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पर है। हमारे यहां तो सरकारी है, आपके यहां पुलिस वाले भी एग्रीमेंट पे हैं। मतलब कमाल है। और मुझे यह भी बताया गया कि जिनके सिविल कपड़े हैं वो पक्के हैं, जिनके वर्दी पहनी है वो कच्चे हैं। मैंने कहा यार उल्टा कर रखा काम है। तो क्यों नहीं हर वक्त अगर पुलिस के सर पे भी तलवार लटकेगी कि हमें कभी भी निकाल देंगे, अगर किसी टीचर के सर पे ये तलवार लटकेगी कि हमें कभी भी कह देंगे चलो घर जाओ, अगर टीचर का फ्यूचर सेफ नहीं है, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएगा? हमने ये फैसला कर लिया कि टीचरों को पक्का करेंगे। और दिल्ली में फैसला कुछ साल पहले हुआ था, उससे सीख लेकर हमने किया है कि टीचरों से पढ़ाई के सिवा और कोई काम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ टीचिंग। बाकी काम हम अपने आप करवा लेंगे। अब टीचरों को पढ़ाई के सिवा बाकी सारे काम लिए जाते हैं। कभी उनको जनगणना में डाल देते हैं, कभी इलेक्शन करवाने हैं, कभी इलेक्शन की गिनती करवानी है, कभी कुछ आ गया, नेशनल स्कीम आ गई टीचरों को। तो बच्चे जो हैं वो जो टीचरों के बिना स्कूल में रहते हैं, और 1-2 टीचर हैं, वही अगर चले गए ड्यूटी पे तो स्कूल तो बिल्कुल लावारिस हो गया। पंजाब में 100 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अभी और बनेंगे। अस्पताल तरफ हम टीचरों से आइडियाज ले रहे हैं कैसे स्कूलों को अच्छा करें। तो मैं तो यही कहता हूं, ये गालियां देने वाले जो हमें गालियां देते रहते हैं टीवी पे, तो हमें दिखाते ही नहीं, जिस दिन दिखाते हैं गालियां देते हैं। कोई बात नहीं, आप हमारे टीवी हो, आप ही हमारे मीडिया हो, आप सब लोगों के पास मोबाइल है आजकल, कोई बात छुपती नहीं है। अगर राजनीति में आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात। अगर राजनीति में आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात, और अगर राजनीति में लंबा समय रहना है तो केजरीवाल की तरह कर अस्पताल और स्कूलों की बात। ये करते नहीं, ये इन दोनों के सिवा कुछ और, स्कूल और अस्पताल तो अपने भाषण में बोलते ही नहीं है। ये जानबूझकर हमें अनपढ़ रखते हैं। उनको पता है गरीब का बच्चा अगर पढ़ गया वो अफसर बन जाएगा, बड़ा अफसर बन गया तो वो घर की गरीबी दूर कर देगा। गरीबी दूर हो गई तो भाई साहब इन नेताओं के कोठियों के सामने, इनके महलों के सामने सुबह सुबह हाथ जोड़कर अर्जियां लेकर लाइन बनाकर कौन खड़ा होगा? इसलिए ये पढ़ने नहीं देते हमें, वरना हमारे बच्चों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। मौका तो मिले, मौका मिलना चाहिए। इस बार आपके बच्चों को मौका मिलना चाहिए, नहीं चाहिए? पढ़ाई का भी, डॉक्टरी करने का भी, इंजीनियरिंग करने का भी, और चुनाव लड़ने का भी। पंजाब में 92 सीटें हमारे पास, 92, 117 में से 92 में से 82 पहली बार जीते हुए लड़के लड़कियां हैं, आम घरों के, आम गरीब लोग घरों। कोई 26 साल का,
कोई 28 साल की लड़की जीत गई, कोई 30 साल का, किसी बड़े बड़े दिग्गजों को हराया, जो ये कहते थे हमें कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब जनता है, पब्लिक जब चाहे लोग अर्श पर और पब्लिक जब चाहे लोग फर्श पर। बड़े बड़े लोगों को धरती पे उतार लेते हैं लोग। एक बात मेरी दाहोद वालों, एक बात मेरी याद रखना, भले ही पूरा भाषण भूल जाना, एक बात मेरी याद रख लेना इस भाषण में से। जिस दिन वोट करने जाओगे एक बात याद रखना कि भगवंत मान जी बोल के गया था, जब अंदर जाओगे सामने मशीन पड़ी होगी और मशीन में बटन होगा, बटन के सामने चुनाव चिन्ह होगा। बस ये सोच लेना जो बटन आप दबाने वाले हो, ना तो वो किसी पंजे का है, ना किसी कमल के फूल का है, ना किसी तीर कमान का है, ना किसी हाथी का है, ना किसी झाड़ू का है। असल में वो जो बटन है वो आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर का, भविष्य का बटन है, खुद दबाना है। किस्मत का बटन है वो। अगर अपने बच्चों की किस्मत खुद लिखना चाहते हो, अच्छी लिखना चाहते हो, चमकाना चाहते हो, तो झाड़ू वाला बटन दबा देना। और अगर यही चलना है कि गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, तो हाथ खड़े करके बताओ अपने बच्चों का और अपना फ्यूचर जो है, किस्मत जो है, खुद लिखना चाहते हो? देखो ये सच्चाई है। असल में हम ऐसे दिहाड़ी पे लोग नहीं लेके आते कि जो हमारे नारे लगाएं, हमारे बारे में मतलब बोलते रहे। हम वो काम नहीं करते। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास नहीं, इनके पास बहुत पैसा है लूटा हुआ। अगर ये आपको आएंगे आपके पास, अभी तो 40-50 दिन पड़े हैं, आएंगे और आपको ऑफर करेंगे, मना मत करना, पकड़ के इनको बोल देना हाँ, और इलेक्शन वाले दिन अंदर जाके कर देना भी हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, जिनको समझ नहीं वो रहने दो। समझदार इलाका है सर, कितना समझदार इलाका है जी, सब समझ गए। ये पहले हमारे साथ ऐसे किया इन्होंने भी धोखे किए हमारे साथ। हमारा बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए, स्कूल खा गए, कॉलेज खा गए, गलियां खा गए, चारा खा गए, नालियां खा गए। क्या पता नहीं क्या इनका हाजमा इतना है, ये कुछ नहीं छोड़ते, ये कुछ नहीं छोड़ते। ये हमारे द्वारा चुने हुए हम पर ही लाठीचार्ज होते हैं। तो पंजाब में 6 महीने की सरकार है, 1 जुलाई से हमने बिजली फ्री कर दी। कम 74 लाख के आसपास बिजली के मीटर हैं पंजाब में घरों में। उसमें से 50 लाख के आसपास पहला बिल 2 महीने के बाद बिल आता है। जून, जुलाई और अगस्त का बिल आया, अभी सितंबर में 0 बिल आया। 50 लाख। लोगों को यकीन नहीं आ रहा, लोग एक दूसरे को जाके दिखा रहे हैं, यार देखो यार कुछ गलत तो नहीं हो गया, बिल ही नहीं आया। दिल्ली में भी ऐसे होता था पहले, आपके यहां भी ऐसा होता है। बिजली आए ना आए बिल टाइम पे आता है। अब दिल्ली में और पंजाब में बिजली आती है, बिल नहीं आता। सरकारों के पास बहुत पैसा होता है आपके टैक्स का इकट्ठा किया हुआ। वो पैसा अगर जनता पे लगा दिया जाए तो बहुत पैसा है, लेकिन ये खा जाते हैं। हम टैक्स देते हैं, ये टैक्स से अपनी ज़मीनें खरीदते हैं, अपने पहाड़ खरीदते हैं, अपने विदेशों में इनके बैंकों में खाते हैं। तो इसलिए अगर वही पैसा आप पर लगे तो ये देश जो है सच में नंबर 1 देश है। कोई कमी नहीं है इस देश में, भगवान के द्वारा कोई नेमत ऐसी नहीं है जो हमें ना दी हो। लेकिन वही बात कह रहे हैं कि इस बार अभी 40-45 दिन रह गए। आप 40-45 दिन की जिम्मेदारी ले लो, उसके बाद 5 साल की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे। क्योंकि इनको ये लगता है कि हम पास जाके ना, बिल्कुल इलेक्शन के पास जाके हम पैसा देंगे, लालच देंगे, कुछ और देंगे और 5 साल इनसे लूट लेंगे। भाई साहब, एक ही मौका मिलता है जनता को 5 साल में, और वो भी 8-9 घंटे, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक।
9 घंटे मिलते हैं बदलने के लिए। अगर वो 9 घंटे आप अपने परिवार को सोचकर, अपने बच्चों को सोचकर वो 9 घंटे इस्तेमाल कर लो, तो आपको दोबारा कहीं इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अच्छी सरकार जब आती है तो दिल्ली जाके पूछ लेना, अब तो आपके दोस्त रिश्तेदार होंगे कि दिल्ली में जो हाल हुआ है, पंजाब में बहुत से लोग यहाँ पंजाब में आते हैं, यहाँ पंजाब से ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह आती है, उनसे पूछ लेना। भाई साहब, सरकारें अच्छी हो तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे पोस्टर जे लगने नहीं देते, अपने लगवा देते हैं बड़े बड़े, जहाँ भी उतरो जहाँ भी जाओ, मतलब इनके पोस्टर लगे होते हैं बड़े बड़े फोटो वाले। मैं यही बात कहूँगा, है हवाओं में घुली सी रंगों की रंगीनी, रौनकें है हर तरफ है खुशबू भीनी भीनी, सज रही है सबके दिल में मीठी सी रागिनी। हर त्योहार के हर रंग में आपके संग मालाबार। आम आदमी पार्टी आनी चाहिए इस बार। आम आदमी